marketing, Hmm. and I have a 3 years experience as a junior accountant. I had worked there as a role operating software and some about tele. And I have done a 45 days training in HR as a recruitment and selection of employees. Thank you. Okay. So you told that you are pursuing MBA in HR or other domain? Yes, MBA in HR. Okay. From which college? IPS College of Technology and Management. Okay. And which university it is affiliated? Sorry, University name? Institutional of Professional Studies. This is the university? In Gwalior itself, No, no. ये यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है? University, यूनिवर्सिटी College, College. कॉलेज है। यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? Shivaji University. राजीव। So Deepa, आपको what do you know about the recruitment and can you help me about this some experience or some project that you have completed so far? Recruitment is that which defines admitting the candidates in an organization. Hmm. Basically, means shortlisting the candidates, taking the interviews, the process as the process of recruitment, which includes the selecting of candidates, job description, shortlisting them, and selecting them, and taking walk-in interviews. Hmm. So now you tell me that can you help me with the what is the recruitment process? Recruitment process is that which begins the first process uploading JD on the portals. Then the second process is to sorry. Okay, no issue. So आपको कुछ आइडिया है कि व्हाट इज द कैंपस रिक्रूटमेंट? What is the campus recruitment? Do you know, Deepak? Yeah, sir. Campus recruitment is mainly first of all we uh, talk to the campus like they are having the opportunities to recruit their students in our campus or not. So the process begin from the telephonic only, and the second process is if they say yes, then we go to their campus and collect all the datas and norms and information their from that campus, and the process begin from there only. Can you define what is the life cycle of a campus recruitment manager? Sorry, sir. Life cycle of. Campus recruitment manager. Okay, all Can right. you repeat it once, sir? Have you heard about क्या आपने सुना है कैंपस रिक्रूटमेंट मैनेजर का लाइफ साइकिल क्या होता है? No, sir. I have not heard about that. लेट्स सपोज अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे 300 400 कैंडिडेट्स हैं जॉब फेयर में आ रहे हैं और अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? दीपा। ऑल राइट। ठीक है दीपक, आप लाइन पर हैं, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। और सो करंटली अभी आप एमबीए स्टूडेंट्स हो, राइट दीपक? Yes, sir. Sir, अभी हो चुका है मेरा MBA. The result has been announced. सो मीन्स आपने एमबीए कंप्लीट कर लिया और अभी फंडामेंटल एट टू बी कंप्लीटेड, राइट ना? Yes, yes. सो विच पार्ट ऑफ वेयर आप किस लोकेशन में जॉब देख रहे हो? Sir, basically in Gwalior itself. ओके अभिनंदन, आर यू फ्रॉम ग्वालियर ओनली और अदर सिटी? अभिनंदन, Yes, I am from Gwalior. यू आर टू? ओके, ऑल राइट। Yes. So, Pooja, Deepa, sorry. And
हाउ मच यू आर कंफर्टेबल फॉर द कैंपस रिक्रूटमेंट? आप कैंपस के लिए तैयार हो कि आप कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो बच्चों को? Sir, I'll try my best. नो, इट्स अ बेस्ट, डेफिनेटली यू विल डूइंग योर बेस्ट बिकॉज दैट इज द जॉब। बट मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि आप कैंपस रिक्रूटमेंट, अगर आपको ऑफिसर कैंपस रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव या ऑफिस लीड का प्रोफाइल अगर दिया जाए, तो क्या आप कैंपस रिक्रूटमेंट कॉलेज में जा करके, कॉलेज अपॉइंटमेंट ले करके आप वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हो? Yeah, sure, sir. ओके। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, दीपा? My strength is basically that I work hard and I'm a dedication person. I just put my efforts, whole efforts in my work. आई थिंक आप क्वेश्चन सुनते नहीं हो, आंसर पहले दे देते हो। मेरा सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। मैंने ये नहीं बोला कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। गेटिंग माय पॉइंट? I'm a dedication person. So first, listen the questions, then give the answer. Hmm? All right. Okay. So, see, I'll tell you, Abhinandan, can you help me help the Deepa ki who we are, what exactly we do? आपको क्या पता है नेटअप्स के बारे में? Can you help the Deepa? Can you explain? सर नडास नेटापस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताएं सर। हाँ, what do you know about the company? What exactly we do and what kind of profile we do have? Can you explain to Deepa? जो काम कर रही है वो एक रोजगार का, जैसे जो सीखो कमाओ योजना के तहत जैसे ही काम कर रही है, और उसमें कैंडिडेट को हम एक तरह से उस जो कैंडिडेट जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ में अभी रोजगार भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक एक अच्छा सा साधन कह सकते हैं अपन इसको। Okay. Let me explain in simple ways with one example. See, I'll tell you, Deepa, with your example only. अभिनंदन, आप अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। दैट लेट्स सपोज, जैसे आपने एमबीए किया, दीपा, राइट? और 2 साल आपने एमबीए किया, बट ठीक है, आपके पास पैसे थे, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि पैसे दे करके और 2 साल टाइम स्पेंड करिए और आपको एमबीए की डिग्री मिल जाएगी, बट प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस कोई नहीं रहेगा, नॉलेज की आप देख ही रहे हो। दूसरी चीज़ है, कैंपस प्लेसमेंट का कोई गारंटी नहीं है। एम आई राइट, दीपा? Yes, sir. सेकंड मेथड क्या होता है? अब जब इस तरह से, जैसा आप लोग एमबीए करते हो, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्लास अटेंड करते हो एमबीए के नाम पे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो, इवन यहाँ तक कि बोरिंग क्लासेस भी अटेंड करते हो। 8-8 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट एक एक सेमेस्टर में पढ़ते हो। लेकिन एमबीए कंप्लीट होने के बाद अगर सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या है, तो शायद उसको बताने में प्रॉब्लम होती है। तो ये तो है एमबीए जो रेगुलर हो रहा है, और कॉलेज में 2 साल का हम प्रेशियस टाइम वहाँ पे लगा रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, बट उसके बावजूद जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड एचआर होता है कि कैसे काम होता है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं या क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, अगर हमें फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो शायद हमें किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एम आई राइट? Sure. तो नाउ द सेकंड मेथड, फिर इजिएस्ट तरीका क्या होता है? अब जैसे आपने एक जब ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया होगा, तो आपने डिसीजन लिया होगा कि मुझे मुझे एचआर बनना है, और एचआर के लिए आपने एमबीए की पढ़ाई किया, क्योंकि आपको बताया गया किसी ने, या आपके घर वालों ने, या आपके किसी कलीग ने, या जिसने, या आपके कॉलेज ने बताया कि आप एचआर बनना है तो आपको एमबीए करना चाहिए, तो आपने एमबीए किया। लेकिन ये सच नहीं है कि एमबीए करने से सभी एचआर बन जाते हैं, या एमबीए करने से सबको वही जॉब जो चाहते हैं मिल जाती है। तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन से ही किसी कंपनी में एज ए एचआर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किए होते,
तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया होता। और अगर आप मान लीजिए कि अगर 20-25,000 रुपीज़ से अपनी जॉब को स्टार्ट किए होते, तो इस समय जो आपकी सैलरी होती है सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 45,000 to 50,000 रुपीज़ की आपकी सैलरी होती। प्लस इसी के पैरेलली जब आप जॉब कर रहे होते, तो अगर आप MBA इंडस्ट्रियल MBA किए होते, तो आप मंडे टू फ्राइडे कंपनी में काम करते, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता, प्लस सैटरडे संडे आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके अपना 2 साल का MBA भी कंप्लीट कर लेते। इस तरह से आपका प्रोफेशनल MBA भी हो जाता है, रेगुलर MBA भी डिग्री कंप्लीट हो जाती, और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आपकी जॉब पहले दिन से लग गई है, तो जॉब का भी प्लेसमेंट का भी कोई हेडेक नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अ, आपको जो फीस MBA का देना होता है, वो आप अपने कॉलेज घर से ना लेकर के, बल्कि आप अपने जो सैलरी उठा रहे हो कंपनी से, आप उससे पे कर सकते थे। सो दिस इज हाउ डू वी वर्क। सो हम लोग जो काम करते हैं, जो अपने कंपनी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, वी आर हायरिंग कैंपस रिक्रूटमेंट इंचार्ज, कैंपस रिक्रूटमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर्स, और जो कि इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, B.Ed कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग सेंटर, NSDC सेंटर्स में जा करके और अधिक से अधिक बच्चों को रिक्रूटमेंट करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं कि डियर, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ MBA की डिग्री या BTech की डिग्री लेने से जॉब, या B.Ed की डिग्री लेने से जॉब, या M.Ed करने से जॉब, या BA, MA, LLB, B.Ed, BTC करने से जॉब मिल जाएगा, तो यू आर रॉन्ग। जॉब मिलती है स्किल से, स्किल्स मिलेगा आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री में काम करने से। तो आप लोग जो आपको पढ़ाई करनी है वो काम करते हुए सीखिए, और हम आए हैं आपको रिक्रूटमेंट करने के लिए, हम आपको जॉब देंगे, और आप जॉब करिए। जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, अगर आप HR में जाना चाहते हो तो HR में करिए, लॉजिस्टिक में जाना चाहते हो लॉजिस्टिक में करिए, बट पैरेलली इसके साथ ही आपका जो ड्रीम है MBA करने का, BTech करने का, B.Ed करने का, उसको आप पैरेलली BTech MBA करते रहिए। तो इस तरह से आपको उनको, उन बच्चों को रिक्रूटमेंट करना है जो पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, और डायरेक्टली थ्रू द कैंपस रिक्रूट के माध्यम से, और इस तरह से उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी, उनकी जॉब भी लग जाएगा। नाउ मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट ये है कि अब आप इस सिनेरियो में आप कितना कंफर्टेबल हो कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि आप पढ़ाई भी करो, क्योंकि आपको पढ़ाई अगर BA, MA, BTech, MBA करना है, तो आप जॉब करते हुए करो। तो आपको क्या लगता है कि आप उन कैंडिडेट्स को जिनको आप कैंपस रिक्रूटमेंट करने जा रहे हो, उनको आप कन्विंस कर पाओगे? दीपा। सर, बिल्कुल कन्विंस उसको उनको उन सबको कर पाएंगे, क्योंकि एज अ मी, फॉर एग्जांपल कि मैंने भी UG किया है, तो मैंने भी विथ एजुकेशन मैंने जॉब भी किया है, तो मैं इजीली कन्विंस कर पाऊंगी। Okay. So that's good to hear. So let's play one short video of our government of India, और जिसके अंतर्गत में हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। तो 2 मिनट का प्रेजेंटेशन है, और इसके माध्यम से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पढ़ाई के साथ जॉब कैसे होता है, और उसका प्रोसेस कैसे है। फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैसे होता है। आफ्टर दैट मैं आपको सैलरी और अदर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो लेट्स वॉच वन प्रेजेंटेशन। Okay. So I am sharing the screen here. So let's watch the presentation of our Prime Minister first. अपने प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि सभी लोगों को पढ़ाई के साथ जॉब करने की ज़रूरत है, और अननेसेसरी पेरेंट्स से पैसे स्पेंड करने से कोई खास मतलब नहीं। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ। युवाओं को कुशल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सबसे उत्तम माध्यम है। अप्रेंटिस कार्यस्थल पर काम करते हुए न केवल सीखता है, बल्कि वो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी पाता है।
और एम्प्लॉयर को भी इस स्कीम से बहुत लाभ मिलता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मकसद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और अप्रेंटिसों की वर्तमान संख्या 2.3 लाख को बढ़ाकर 2020 तक 50 लाख करना है। जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की का कैपिटल बनने की बन सकती है। 4 वर्ष में 50 लाख प्रशिक्षित कार्यबल सृजित करने हेतु अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। ये पहला मौका है जब भारत सरकार ने आगे बढ़कर इस नई पहल की शुरुआत की है। एम्प्लॉयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने वाले हर अप्रेंटिस को कम से कम प्रति माह 7,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहा है। भारत सरकार प्रत्येक एम्प्लॉयर को इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेंड का 25% या अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह प्रति अप्रेंटिस के हिसाब से दे रही है। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही अपने विकास को एक नई गति दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल के कोर्सेज को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ट्रेनीज पास्ड आउट फ्रॉम ITI कोर्सेज, स्कूल पास आउट कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इस स्कीम से युवाओं को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। इसका लाभ उठाकर युवा सफलता की नई इबारतें लिख रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम युवाओं को कौशल से जोड़कर कुशल भारत बनाने के सपने को साकार कर रही है, उनके कौशल को निखार रही है, उन्हें जीने की नई राह दिखा रही है और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों को सार्थक कर रही है। हम सभी उद्योगों से अपील करते हैं कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए और कौशल भारत के भागीदार बने। ओके, सो दीपा, यू गॉट सम पिक्चर क्लैरिटी? आपको कुछ क्लैरिटी आई? प्रोजेक्ट कैसा है, क्या काम करना है? दीपा, दीपा, आर यू देयर? ओके, सो नाउ द इम्पोर्टेंट इज, जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग पढ़ाई के साथ जॉब करें, और उनको हम एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार हैं, बट कंडीशन ये है कि उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनको हायर एजुकेशन करना पड़ेगा, बट वो पढ़ाई करनी पड़ेगी जिस डिपार्टमेंट में वो जा करके काम करेंगे। अगर उनका डिपार्टमेंट कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशन है तो दे विल बी डूइंग MBA इन CRM। अगर उनका अकाउंटिंग है तो MBA इन फाइनेंस। अगर उनका डिपार्टमेंट HR है तो MBA इन HR। अगर उनका डिपार्टमेंट से लॉजिस्टिक से सप्लाई है तो लॉजिस्टिक। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल है तो उस तरह से वो पढ़ाई साथ जॉब करेंगे। नाउ ये है तो बेसिकली अगर नट सेल में कहें कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारे पास वैकेंसी है एज ए कैंपस रिक्रूटमेंट ऑफिसर, और आपको 3 से 4 कैंपस हायरिंग करके और वहाँ पे जो कैंडिडेट आएंगे उनको आप इंडिविजुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट करके उनको काउंसिल करके उनको मोटिवेट करिए कि पढ़ाई के साथ जॉब करने, या फिर जो कंपनी की वैकेंसी है उनको इन्फॉर्म करते हुए उनको कंपनी के HR से कोलैबोरेट करके उनकी अनबोर्डिंग करा दीजिए। और जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, उनको ऑफर लेटर मिल जाए तो उनको फॉलो अप करिए कि आप लोग अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई भी और जॉब दोनों चलता रहे। राइट, so this is the roles and responsibilities. Second,
ये होता है कि आपको डेली रिपोर्टिंग करना, ये आपका काम होता है। डेली बेसिस पे आपको 50 बच्चों से 50 कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट और काउंसलिंग करना मैंडेटरी है। एक महीने में 1500 बच्चों की काउंसलिंग रिक्रूटमेंट करना ज़रूरी है। और इस तरह से आप काम करेंगे। बेसिकली तौर पे अभी जबलपुर में मेरा ऑफिस नहीं है, सॉरी ग्वालियर में, तो उसके लिए अभी आप रिमोट से काम करोगे अपने लैपटॉप अपने सिस्टम से। बट जैसे ही आपका हमारे पास वहाँ पे ग्वालियर में 20 लोगों की टीम हो जाएगी तो आपको हम ऑफिस सेटअप कर देंगे। वो आप तो अगले 1-2 महीने तक 3 महीने तक आपको हो सकता है कि रिमोट और वर्क फ्रॉम होम। सो आपका 10 to 20% आपका वर्क फील्ड का रह सकता है, कैंपस हायरिंग का फर्स्ट मंथ। बट सेकंड मंथ से आपके पास डाटा रहेगा तो आप उसको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ डू वी वर्क। तो ये है। इसके साथ ही आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहेगी कि आप जिस भी कॉलेज में कैंपस हायरिंग करने जाएंगे वहाँ पे मिनिमम 5 इंटर्न्स को रिक्रूटमेंट करेंगे। अब ये 5 इंटर्न्स जो भी डाटा आप पिकअप करेंगे उनकी वो कॉलिंग करेंगे और उनको बच्चों को कन्वर्ट करेंगे। तो आपका काम ये आसान करने के लिए हमने ईजी कर दिया कि जिस कॉलेज में आप कैंपस हायरिंग करने जाओ उसी कॉलेज से आप 4 से 5 इंटर्न हायर कर लो। और जो डेटा 400 500 1000 2000 डाटा आप वहाँ से पिकअप करोगे उनको बोलो कि आपका काम है कि इनको काउंसिल करो, इनको कन्वर्ट करो और इनको अधिक से अधिक बच्चों को जॉब के साथ पढ़ाई के लिए कन्विंस करो। तो ये आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। क्लियर नाउ? डन सर। ओके, एनी क्वेश्चन अभिनंदन? यस सर। ओके, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे मैं अभी अपनी हायरिंग एसबीआई में दे रहा था, मैं रिटेल में हम्म, एसबीआई क्रेडिट कार्ड में। तो वहाँ पे मेरा अभी बैक ऑफिस है मेरे पास, और मैं अपनी टीम, जैसे मैं अपनी टीम बनाता हूँ हम्म, रिक्रूटर के लिए, तो हम्म। मैं अपनी टीम को वहाँ पे शटल कर सकता हूँ अपने लिए, उनके लिए सेटिंग वगैरह कर सकता हूँ सारा कुछ। सेटिंग में समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान के चलो कि आप कह रहे हैं ना कि अभी रिमोट से आपको काम करना है, हम्म। जिस जब तरह तक से जब तक 20 लोगों की टीम नहीं है मेरे पास तब तक आपको रिमोट करना है। जैसे ही 20 लोगों की टीम हो जाएगी हम डायरेक्टली ऑफिस सेटअप कर देंगे, अदरवाइज कोई फ्रेंचाइजी ला करके वहाँ रख देंगे तो आप वहाँ से काम करेंगे जी। ओके। ना आप लोगों के काम को आसान करने के लिए हमने एक जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया है वो है कि जिस भी कॉलेज में आप कैंपस हायरिंग करने जाएं तो उसी कॉलेज में से कम 4 से 5 इंटर्न हायर करिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हों और उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। तो उनको बोलिए कि आप एज एन इंटर्न काम करिए और 6 महीने कंप्लीट करने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस और आपकी स्किल अच्छी रही तो हम आपको कन्वर्ट कर देंगे फुल टाइम एम्प्लॉय में। राइट। ओके। तो उनको जो डेटा आपको उस कॉलेज या जॉब फेयर से 1000 2000 4000 10,000 मिलेगा आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए। बोले कि डेली बेसिस पे 50 बच्चों की काउंसलिंग और रिक्रूटमेंट करना आपका काम है। आप उनसे काम कराइए, उनसे रिक्रूटमेंट लीजिए और उनसे आप भी करिए। तो इस तरह से आपका जो नंबर है रिक्रूटमेंट का और एडमिशन का वो भी बढ़ जाएगा। और उन बच्चों को आप हज़ार हज़ार रुपए का इंटर्नशिप स्टाइपेंड दे सकते हो। राइट, क्योंकि वो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा नहीं दे सकते लेकिन 1000 रुपए का कम से कम मंथली स्टाइपेंड दे दो तो वो पढ़ते रहेंगे और आराम से काम भी करते रहेंगे। क्लियर? सो दिस यस इज सर। ये एक इजीएस्ट तरीका होता है कि आप अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैसे फास्ट करो और कैसे अधिक से अधिक बच्चों को आप एडमिशन दो, अधिक से अधिक बच्चों को आप प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सको। ऑलराइट। सो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं कि सर इस जॉब में क्या कोई फील्ड वर्क है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि अगर आप फर्स्ट वीक और मंथ के फर्स्ट 7 to 10 डेज आप 8 से 10 कॉलेजेस को विजिट कर लेते हो, कैंपस हायरिंग कर लेते हो तो आपको आराम से 8 से 10 हज़ार डेटा मिल जाएंगे। क्योंकि आजकल डेटा एक एक कॉलेजेज में एक एक हज़ार बच्चे होते हैं। अगर आपने 8 से 10 कॉलेज भी कवर कर लिया तो आपको 8 से 10 हज़ार डाटा बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी बहुत सारी जॉब फेयर्स चलती हैं पूरे भारत में, तो आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो एज एन एचआर मैनेजर और आप वहाँ से कैंडिडेट जॉब फेयर में जो आते हैं उनका आप डाटा भरा सकते हो तो वो भी डाटा मिल जाएंगे, उसका इशू नहीं आएगा। तो जब 8 से 10 हज़ार डाटा आ गए तो उसके बाद 10 दिन के बाद अपना फील्ड वर्क स्टॉप कर दीजिए। कहीं भी कोई भी कैंपस हायरिंग आपको फील्ड पर जाने की जरूरत नहीं है।
जो भी 10 दिन किया उसके बाद आपका आता है 50 बच्चों के 11वें दिन से आप 50 बच्चों की काउंसलिंग डेली करेंगे। तो 50 बच्चों की काउंसलिंग का मतलब हो गया कि आप उनसे डायरेक्टली बात करिए, और अगर वो जॉब चाहते हैं और जॉब के साथ पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं तो उनको बोले कि ये कंपनी है, ये सैलरी है, इतना सैलरी, ये बेनिफिट मिलेंगे, और आप जाइए, इंटरव्यू अटेंड करिए, और सेलेक्ट होने के बाद ऑफर लेटर जब मिल जाए तो आप अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करिए और अपना फीस जमा करिए, जो भी आपका पढ़ाई करना है यूनिवर्सिटी का। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चों का एडमिशन होगा, वो नेटैप्स कंपनी डिसाइड करेगा, क्योंकि हमें उन एम्प्लॉयज़ का क्लासेस, एग्ज़ाम सब कुछ कंडक्ट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर हो गया? राइट। सो दिस यस इज सर। हाउ टू वेयर। तो अब सिंपल चीज़ है कि 50 बच्चों की रिक्रूटमेंट करना, 50 बच्चों का डेली बेसिस पे बात करना, उनको कन्विंस करना कि, और तो अगर अब आप ही बताइए कि दीपा, आप भी ध्यान से सुनिएगा कि जिस बच्चे को हम मिनिमम 15,000 20,000 रुपीज़ का मंथली स्टाइपेंड या सैलरी दे रहे हैं, उनको उसको खाना दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, पीएफ, ईएसआई, पढ़ने का मौका, डिग्री, डिप्लोमा फ्री, कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्री, इंग्लिश का ट्रेनिंग, उसको अपने जो एमबीए बीटेक करेगा उसको अपने घर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, वो पैसे कमा रहा है, उसी से अपना फीस जमा करेगा। तब आप ही बताइए कि 50 बच्चों से अगर आप बात करोगे कि आपको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं और जॉब दे रहे हैं, तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 50 में से पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए तैयार हो जाएंगे? दीपा। सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कन्विंस हो जाएंगे इस बात से, क्योंकि उनको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेगी, तो व्हाई नॉट, दे विल कन्विंस। करेक्ट। तो पॉइंट ये है कि जब हम उनसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हमारा बस रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पढ़ाई के साथ जॉब करो, और एंड ऑफ में आपको बीटेक एमबीए डिप्लोमा करना है तो आप करिए, हम और लेकिन जॉब लगने के बाद, ऑफर लेटर मिलने के बाद, आप एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करिए और अपना जो सैलरी मिले उसी से फीस, ईएमआई में फीस जमा करिए। तो दिस इज हाउ डू वी वर्क। तो आपको उनकी एडमिशन फॉर्मेलिटी, जब उनकी इंटरव्यू, एचआर के साथ इंटरव्यू हो जाए तो उनका ऑफर लेटर कलेक्ट करिए और उसके साथ ऑफिस को जमा करिए, और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद उनको फॉलो करिए कि वे लोग अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें, और जो भी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फीस, ट्यूशन फीस या एग्जाम फीस जो भी है वो अपना पे करके अपना हमें प्रूफ दें, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, अब उनको हर मंथ महीने की ईएमआई देनी है यूनिवर्सिटी की, तो उनको मंथली आप उनको फॉलो अप करते रहिए कि सर आपका जेंटल रिमाइंडर ये है कि आपका यूनिवर्सिटी का फीस इस मंथ को ड्यू है, तो आप जैसे सैलरी आए तो पहले इसको क्लियर कर दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक काम ये रह जाएगा, और उसके साथ ही उनसे रिलेशनशिप बना करके रखिए कि अधिक से अधिक रेफरेंस उनसे जनरेट हो। अगर उनको कोई चैलेंजेस बच्चे को आ रहा है, सर मैम जॉब में कोई चैलेंजेस आ रहा है या कंपनी समझ में नहीं आ रहा है, तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद उसको बोलिए कि आप 6 महीने कंप्लीट करिए, उसके बाद हम आपको दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर देंगे। तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करते हुए आप आगे बढ़िए और इस तरह से मूव आउट करें। तो अगर आप जैसा कि आपने बताया 50 बच्चों की अगर आप डेली रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग करेंगे, वंस कैन गाइस। ओके गाइस, वंस अगेन। सो नाउ द थिंग इज कि अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम 50 बच्चों की काउंसलिंग डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो जैसा दीपा ने बताया कि मिनिमम अधिक से अधिक बच्चे उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि 50 में से 5 कैंडिडेट भी कन्वर्ट हो रहे हैं तो 100 में से 10 हो गए। अगर 100 में से 10 कैंडिडेट भी कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर हम 10% कन्वर्जन भी मान के चलें, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक महीने में 1500 बच्चों से बात करेंगे तो आराम से 10% कन्वर्जन के अनुसार मिनिमम 100 टू 150 कैंडिडेट्स को हम आराम से उनको जॉब दे देंगे और उनको हम एडमिशन भी करा देंगे। तो इस तरह से सोसाइटी में जो टेक्निकल एजुकेशन का गैप है वो भी फिल होगा, लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होगा। जब यूथ एंगेज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका क्राइम सोसाइटी का डाउन होगा, और ऑटोमेटिकली फिर
एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन देश के लिए तैयार होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो नाउ द थिंग इज कि अगर हम 10% कन्वर्जन मान के चलें, जहाँ पे हम 150 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन दे रहे हैं, और इस तरह से अगर हम अकेले काम करेंगे तो एक साल में अधिक से अधिक 1500 से लेकर के 1800 बच्चों का ही अधिकतम जॉब और प्लेसमेंट दे पाएंगे 10% कन्वर्जन के अनुसार। दिस मीन्स कि आपने 10 दिन के अंदर मार्केट से डेटा उठाया कैंपस हायरिंग के जरिए 10,000, आपने 10,000 में से कितने लोगों को जॉब दिया एक साल में? सिर्फ 1500 लोगों को। इसका मतलब ये है कि 10,000 डाटा को आप ख़त्म कर ही नहीं पाओगे, उनकी पूरी काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको काम को आसान करने के लिए हम आपको अलाउ करेंगे कि आप अपने अंडर में 5 से 10, 15 आप इंटर्न्स और फ्रेशर्स हायर कर सकते हो, जो आपके लिए काम करेंगे, और उनसे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों की काउंसलिंग कराइए, क्योंकि उनके सबसे बड़ी हेडेक होती है सर लीड कहाँ मिलेगा, तो आप उनको लीड दे दीजिए और डेली बेसिस उनसे काउंसलिंग कराइए, रिक्रूटमेंट कराइए, तो ऑटोमेटिकली आपका काउंसलिंग हो गया, रिजल्ट का रिजल्ट निकल आएगा, राइट। तो नाउ जब आप 10 दिन कैंपस हायरिंग करके पूरे साल भर 350 दिन आप अपने घर से या ऑफिस से लैपटॉप खोल करके काम कर रहे हो, तो अब आप ही बताइए कि फील्ड वर्क है या ऑफिस वर्क है? दीपा और अभिनंदन, ऑफिस वर्क रहेगा सर, फील्ड वर्क क्यों रहेगा ये? राइट। सेकंड चीज़ होता है कि अब हम बात करते हैं एक चीज़, दूसरा क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि सर ये तो कंफर्म हो गया कि ये फील्ड वर्क नहीं है, क्योंकि 10 दिन ही जाना पड़ रहा है पूरे साल भर में, तो कोई बात नहीं, इतना तो हो जाएगा। सेकंड चीज़ होता है कि टारगेट को लेकर के बहुत कैंडिडेट को हेडेक होती है। तो मेरा सिंपल चीज़ ये है कि हमारे यहाँ टारगेट कल्चर नहीं है, तो आपको इसकी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, या आपको 150, 200, 500 बच्चों का एडमिशन करना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी आपको सैलरी दे रही है, जो भी सैलरी दे रही है, आप जिसके लिए एलिजिबल हो, तो सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपको 10% कन्वर्जन कर रहे हो तो 150 बच्चों का हो रहा है, तो आप 10% करोगे तब भी फुल सैलरी, 5% करोगे तब भी फुल सैलरी, इंसेंटिव बोनस। और अगर आप 1% भी आप कन्वर्जन करके दोगे, अब 1% कितना होगा? 1% मतलब मान लीजिए कि 1500 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 15 बच्चे ही कन्वर्ट होकर के हमारे पास कन्वर्ट होकर के आए जो पढ़ाई के साथ जॉब करेंगे एक महीने। तो अगर 1% भी कन्वर्ट होकर के आए तब भी आपकी पूरी सैलरी रिलीज होगी। देखिए अगर परफॉर्मेंस लेवल 1% से नीचे जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि आप सीरियस नहीं हो जॉब के लिए, और आप एज ए फ्रीलांसर के रूप में, पार्ट टाइम के रूप में काम कर रहे हो, तो हम आपको जो सैलरी पे आउट करेंगे, अगर परफॉर्मेंस 1% से नीचे है, जैसे एक एजेंट को या फ्रीलांसर को सैलरी हम पे आउट करते हैं या कमीशन देते हैं 200 रुपये पर कैंडिडेट, उस तरह से पे आउट कर देंगे। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल 1% से ऊपर है, तो आपका जो भी 20,000, 30,000, 40,000 आपका बनता है, 50,000, आप उसको पूरी सैलरी लीजिए, और 7 से 10 के बीच में सैलरी रिलीज होगी। तो अब आप ही बताइए, जहाँ पे हम 10% या 20% की बात कर रहे हैं कन्वर्जन रेट के अनुसार, अगर हम 1% तक आ गए कि 1% तक सैलरी पूरा रिलीज कर रहे हैं, तो आप ही बताइए कि ये टारगेट बेस्ड जॉब है या बिना टारगेट का है? दीपा, नॉन टारगेट सर। राइट। तो एटलीस्ट आप इतना मेंटेन करके चलो कि भाई सिंपल चीज़ है, कोई भी कंपनी अगर आपको सैलरी दे रही है और पूरी सुविधाएं दे रही है, तो आप उसको यूटिलाइज करो, और आपसे जितना हो सके उतना करो, लेकिन एटलीस्ट 1% तो काम करके रखिए, 1% से ऊपर रखिए, तो कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी सैलरी ऑन टाइम रिलीज होगी। नॉट थर्ड चीज़, तो एक चीज़ हमने डिसाइड क्लियर कर दिया कि ये तो फील्ड वर्क नहीं है। दूसरी चीज़ हमने ये भी क्लियर किया कि लीड कैसे जनरेट होगा, तो उसके लिए हम आपको सपोर्ट कर देंगे, कैंपस आने का लीड वगैरह ला करके दे देंगे, कॉलेज का डिटेल्स दे देंगे, या फिर जॉब फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं, अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी हम दे देंगे, तो उसका सपोर्ट मिल जाए, तो लीड का भी कोई हेडेक नहीं है, और फील्ड वर्क है नहीं। तीसरा है आपका, हमने टारगेट हटा दिया, बाकी आप एंजॉय होकर के काम करिए, अधिक से अधिक बच्चों को रिक्रूटमेंट करिए, उनकी काउंसलिंग करिए, उनको जो भी पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं उनका एडमिशन कराइए, उनको बोलिए कि अब जब एडमिशन हो जाए तो उनको बोलिए कि अब कंपनी में जा करके इंटरव्यू दीजिए, जॉब को ज्वाइन करिए। क्लियर? तो दिस इज द जॉब, ये ही आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से डेली रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, तो डेली, मंथली, वीकली रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। और हमारे यहाँ जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ये है कि 17,000 रुपये बेसिक सैलरी, इसके साथ ही हम लोग 2,000 रुपये का आपका पेट्रोल, 1,000 रुपये का इंटरनल मंथली देते हैं, 20,000 रुपये हमको सैलरी देते हैं MBA कैंडिडेट को। अगर कोई ग्रेजुएट होता है तो उसको हम 15,000 रुपये, 12 से 15,000 रुपये पे आउट करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी एम्प्लाई जो भी
एज ए कैंपस रिक्रूटमेंट मैनेजर काम कर रहा है, इंचार्ज काम कर रहा है, अगर वो अपना 10% कंप्लीट करता है, 5%, 10% जो भी उसने लिया है, अगर उसको कंप्लीट करता है तो 15,000 रुपये का इंसेंटिव और 10,000 रुपये का बोनस। मतलब जैसे आपने बोला कि मैं आराम से 10% कन्वर्जन कर लूँगा, तो अगर आप उसको अचीव कर रहे हो तो आपको 15,000 रुपये का इंसेंटिव प्लस 10,000 रुपये का बोनस प्लस 20,000 रुपये फिक्स सैलरी, इसका मतलब 45,000 आपको मंथली मिलेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस सिर्फ 75% के बीच में है तो उस केस में आपको 35,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल 50% से ऊपर है तो उस केस में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल 50% से कम है तब भी आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस लेवल सिर्फ और सिर्फ 25% से कम है, 1% से ऊपर है, तो आपको पूरी 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इससे नीचे तो हमारे यहाँ है ही नहीं। 20,000 रुपये मिनिमम सैलरी है। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल 1% से नीचे चला गया तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे, हम ये मानेंगे कि आप सीरियस नहीं हो और आप एज ए फ्रीलांसर या पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तो हम आपको जैसे कमीशन होता है 200 रुपये पर कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट करके रिक्रूटमेंट करके दोगे उसको हम पे आउट कर देंगे। तो ऐसा दिन नहीं आएगा, कोई करता नहीं है, बट फिर भी ये बताना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये आपके ऑफर लेटर में मेंशन रहेगा कि मैम या सर जो भी हैं, आपके ऑफर लेटर में मेंशन रहेगा कि अगर परफॉर्मेंस लेवल 1% से नीचे जाए, जिस मंथ में डाउन होगा उसी मंथ में हम फ्रीलांसर कंसीडर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपका हेल्थ के कारण या कोई कारण हो सकता है कि आप नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, बट टर्मिनेशन कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, तो हम टर्मिनेट नहीं करेंगे। बट ये है कि आपको चांस दोबारा देंगे कि चलो ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ में परफॉर्म करो, पूरी सैलरी अपनी ले लो। तो 20 to 21 हमारे यहाँ अटेंडेंस साइकिल और 7 से 10 के बीच में हमारा बिलिंग साइकिल होता है, सैलरी प्रोसेस होता है। जो हमारी नए बैच की ज्वाइनिंग हो रही है वो 18 तारीख से हो रही है। 18, 19, 20 हम लोग 3 दिन ट्रेनिंग में रहेंगे। 3 दिन ट्रेनिंग होगी और 21 से आपका जॉब स्टार्ट होता है, जो कि हमारे यहाँ का प्रोसीजर है। क्योंकि जो नई बैच स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से, अगर आपको ज्वाइन करना है, जॉब को स्टार्ट करना, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके और अपनी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेना। सेकेंड राउंड ज्वाइनिंग कैसे होता है? ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि आपको 3 फॉर्म दिए जाएंगे, गोल सेटिंग फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म एंड आईडी कार्ड फॉर्म। गोल सेटिंग फॉर्म क्या होता है? गोल सेटिंग फॉर्म ये होता है कि आप ये डिसाइड करते हो, गोल में अपना सेट करते हो कि हम डेली काम क्या करेंगे, वीकली क्या करेंगे, मंथली क्या करेंगे, क्वार्टरली क्या करेंगे, हाफ ईयरली क्या करेंगे एंड ईयरली क्या करेंगे। ये पूरा प्लान अपना ऑलरेडी एडवांस में दे करके चलते हो, जिससे हमें बार बार आपसे न पूछना पड़े कि आप आज क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लान दे दिया है। तो हम मंथ के एंड में हम उसी पर बात करेंगे कि आपने जो लिख करके दिया है उसको आप अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये गोल सेटिंग फॉर्म भरना जरूरी है। इसके साथ ही ज्वाइनिंग फॉर्म रहता है, बहुत सिंपल होता है, तो डिटेल भरना है। इसके साथ ही आईडी कार्ड फॉर्म आपके आईडी कार्ड के लिए होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम आपको ऑफर लेटर, आईडी कार्ड इशू कर देंगे और फाइनली आपको सैलरी का नेक्स्ट चला जाएगा और आप उसको सैलरी को एक्नॉलेज करोगे और 18 तारीख से ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग एट नेटएप्स कंपनी। यस अभिनंदन। यस अभिनंदन, आप कुछ बोलना चाहते हो? अभिनंदन, आप कुछ बोलना यस चाहते सर। हो? जी यस सर। जी बोलिए। सर इसमें आप जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस थी सर, तो हम्म, सबसे पहले सर इसमें गोल सेटिंग का था, इस हम्म, फॉर्म को भरा सर। उसके बाद सर क्या कहते हैं, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग का फॉर्म था, उसको भरा। उसके बाद सर मैंने आईडी कार्ड का भरा। पर हम्म। इसमें सर लास्ट ऑप्शन, एक और ऑप्शन आ रहा है इसमें, डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन आ रहा है इसमें, लिंक का, तो इसको भी फिल करना पड़ेगा सर? डॉक्यूमेंट्स अपलोड का होगा, तो एक फॉर्म मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट अपना शेयर करने के लिए। ठीक अच्छा। है, तो तो इस डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट आप मेल पे भी कर सकते हो शेयर, या फिर एक फॉर्म मिलेगा उसमें अपलोड कर दीजिएगा जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया। ठीक है सर। ठीक है, ओके तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। जी सर। अब जैसे मान के चलो मैं किसी कैंडिडेट को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, मैं रिक्रूटर पोस्ट पे, जैसे मान के चलो जो हायर कर रहे हैं नई टीम, हम्म। मैं अपनी टीम बना रहा हूँ अपनी टीम लीडर के अकॉर्डिंग जैसे। तो सर मैं उनको हायर कर रहा हूँ, तो उनकी क्या कब ट्रेनिंग वगैरह होगी? जैसे मान के चलो मैं सोच रहा हूँ उनको 20-21 के बाद मैं उनको हायर करूँ तो। मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी कम से कम 2 से 3 लोगों की टीम जितना जल्दी हो, अगर 18 तारीख का भी टाइम है, 2 दिन का, और हम्म। आप उनकी रिक्रूटमेंट करके उनकी ज्वाइनिंग करा लो। तो इससे क्या रहेगा कि जब ट्रेनिंग
आपके शुरू हो गए तो उनके साथ हो गए, तो उसी समय हम आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे उनके साथ। और हम्म। बार बार ट्रेनिंग देने के, क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर लिए और आपके पास टीम नहीं है तो आपको कैंपस हायरिंग करने में चैलेंज आ सकता है थोड़ा बहुत, राइट। एंड सर उनकी सैलरी क्या रहेगी सर? फिर वो जैसे मान के चलो, अब मैं रहूँगा, मेरी मेरी टीम में रहेंगे वो, तो मेरे बराबर सैलरी थोड़ी मिलेगी फिर उनको। उनकी सैलरी, आप जिस भी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करोगे वो ग्रेजुएट होना चाहिए, एमबीए नहीं हम्म। होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। और हम्म। उन्हीं को रखिए जो एमबीए की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिससे अगले 2 साल तक आप आपके साथ कर करके काम करें। अगर वो एमबीए ओके। के साथ जॉब के साथ एचआर डिपार्टमेंट में एचआर एमबीए करना चाहते हैं और एमबीए का जॉब भी करना चाहते हैं, तो आप उनको ग्रेजुएट को कैंडिडेट को रिक्रूट कर लिए, उनको फिक्स सैलरी 12,000 रुपये कर दीजिए, बाकी इंसेंटिव बोनस अलग से रहेगा। एक क्वेश्चन और है मेरे सर, जैसे यहाँ पे इंसेंटिव क्या रहते हैं सर अपने, जो इंसेंटिव टारगेट यहाँ के पे, ऊपर? हाँ, इंसेंटिव हमारे यहाँ पे ये होता है कि जैसे आप अगर आपका परफॉर्मेंस लेवल 25% से ऊपर है, राइट, तो आपको पर कैंडिडेट पे 700 रुपये, सॉरी, 500 रुपये से लेकर के 700 रुपये के बीच में आपका पर कैंडिडेट पे इंसेंटिव मिलता है। ओके सर। क्लियर। तो जैसे आपने, क्लियर। सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपने मान लीजिए 25% होता है 20 कैंडिडेट का, 20-22 कैंडिडेट का होता है, उससे आपने आपने 22 कैंडिडेट का 25% होगा तो आप सैलरी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपका परफॉर्मेंस लेवल 25% से आपने 10 कैंडिडेट 35 कैंडिडेट कर दिया, 40 कैंडिडेट कर दिया, 50 कैंडिडेट कर दिया, तो 50 कैंडिडेट का आपको 25,000 रुपये इंसेंटिव अलग से मिल जाएगा। ओके सर। क्लियर हो गया। तो 25,000 रुपये आपकी फिक्स सैलरी हो गई, 25,000 रुपये आपकी इंसेंटिव बन गया, तो 50,000 रुपये आपका सीधे सीधे हो गया। एनी क्वेश्चन, दीपा? No, sir. So, all right, guys. Deepa, you may leave this meeting. Let me talk to Abhinandan here. एंड आप अपना डिसीजन लेकर के आप हमें, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप काम कर सकते हो, तो अपना ईमेल आईडी हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भेज देता हूँ। ओके, Okay, sure, sure, sir. थैंक यू दीपा, हैव ग्रेट डे, थैंक यू, बाय।